My name is Bivaranjan Mohanty. I am a computer expert. Today I am going to discuss about the fundamental of operating system. In our previous class, we have already discussed about what is operating system, what are the types of operating system. As you know, operating system is the interface between the machine and the user. And today I am going to discuss about the different examples of operating system that is available in the market. So now today we are discussing about the features of DOS, Windows and Unix. DOS, Windows and Unix, these are the most popular operating systems we have used. And in addition to this operating system example, I am also going to discuss about programming languages and the language translator details. What is operating system? We know operating system is the interface between user and the machine. Here is the machine, here is the user. So user, if you want to interact with the machine, it takes the help of operating system. Operating system accepts the instruction from the user and it transfers to the machine. Again from the machine, it interacts with the user. So operating system is the most important part of the computer system. Without operating system, a computer cannot be active. So as we discussed, operating system is categorized in the different type based on the user, and based on the interface. Based on the user, operating system is single user operating system and multi-user operating system. Based on the interface, it is CUI based interface, another one is GUI based interface. CUI means command user interface, and GUI means graphical user interface. What is interface? Interface is the medium. Interface is the medium through which user can able to interact with system, and this interface is the part of operating system. It is a part of OS. So in the GUI, for example, the GUI, we are using Windows operating system. The desktop is the interface. Similarly, the CUI, we can take the example of MS DOS. Similarly, Unix. Here the interface is like a screen without any graphical things. Here we have to enter the commands, and here we can find the icons. By looking the icons, we can interact with the computer system. Okay, and operating. So now we are going to discuss about following things. To know about DOS, Windows and Unix operating system, to know about programming language, that is there are different type of programming language: machine language, assembly language and high level language.
and to know about language translator. There are different translators available, compiler and interpreter. I am going one by one thoroughly, so keep patience and watch the video till the end. Sure. Another thing, operating system can be categorized based on 16-bit operating system, 32-bit operating system and 64-bit operating system. It means the size of the instruction a operating system can process. In the DOS operating system, this is 16-bit operating system, and Windows XP operating system was 32-bit operating system. Now we are using Windows 10 operating system and it is 64-bit operating system. 64-bit means the size of the instruction is 64. Okay. Then let's discuss about the most popular operating system, that is MS-DOS. Then I will discuss about the Unix and the Windows. Sure. What is MS-DOS? Most popular and the first operating system of Microsoft organization. Microsoft is a giant and a huge organization in the computer world. Sure. In 1981, MS-DOS was developed, and MS-DOS is a single user and single tasking operating system. What do you mean by single user? That means in this operating system, at a time one user can work, as well as single tasking. Single tasking means, for example, today in the Windows operating system, suppose you are using computer, in the Windows operating system you can play a game, at the same time you can running your music, at the same time you are working in the Word files. So at a time we can do multiple tasks, that is called multitasking. But in the DOS operating system we cannot do such type of things, only we can do single task at a time. Okay, so it provides a command line user interface. What is command line user interface? Suppose I want to see, suppose मैं देखना चाहता हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू से जो मेरा कंप्यूटर में क्या क्या फाइल्स में सेव किया हूँ, तो मैं उसको देखना चाहूँ, कैसे देखूंगा ना, देखूंगा एक कमांड लिखना होगा मुझे, क्या ना, dir मीन्स मेरा कितना फोल्डर्स है, डायरेक्टरीज है सी ड्राइव में, डी ड्राइव में, तो उसको मैं कमांड के थ्रू से देखूंगा। इस कमांड मैं कहाँ से दूंगा, इस तरह का एक ब्लैक स्क्रीन आएगा, यहाँ पे जैसे कि dr लिखा गया है, इस तरह का तुमको कमांड लिखना होगा। तो DOS ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें काम करने के लिए तुमको क्या करना होगा ना, कमांड सीखना होगा। तो जो कंप्यूटर यूज करना चाहेगा और कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करना चाहेगा, तो उसको क्या करना होगा ना, इतना कमांड, क्या क्या कमांड है उसको सीखना होगा DOS में। तो पहले जो इन 1995 टू 1981 में जब DOS आया, तभी से लेकर 1995 तक जो भी कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा था, उस टाइम इतना विंडोज का कोई मतलब यूजर इंटरफेस नहीं था। तो उस टाइम जो भी कंप्यूटर एक्सपर्ट्स और कंप्यूटर यूजर्स थे, तो वो कमांड सीखते थे और कमांड सीख के वो कमांड टाइप करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते थे। तो ये DOS का था। ओके, तो द CLI ऑफ MS-DOS is more commonly known as DOS prompt. What is DOS? CLI means command line interface. This is called prompt, C:/drive. When we open the DOS, हम अगर DOS कंप्यूटर से खोलेंगे तो ये क्या हमको दिखाएगा ना, इस तरह का एक ड्राइव्स दिखाएगा, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, जहां पे हम कमांड टाइप करेंगे। हम इधर dir टाइप करेंगे। कैसे तुम DOS स्टार्ट करोगे, तो DOS आजकल भी कंप्यूटर तुम्हारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तुम यूज कर रहे हो, विंडोज 10 हो, विंडोज 7 हो, उसी में क्या हो रहा है ना, DOS इंटीग्रेट होके आया है। जो अगर यूजर इंटरफेस मतलब कोई माउस
नहीं है तुम्हारे पास, तुम यूज करना चाहते हो कंप्यूटर को इंटरेक्ट करना चाहते हो कीबोर्ड के थ्रू से, तो कैसे करोगे? तो माउस होगा तो कोई पिक्चर देख के तुम पॉइंट करके कर पाओगे नहीं, तो हम क्या करेंगे ना, ओनली कीबोर्ड से भी कंप्यूटर में ऑपरेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे ना, हम डॉस के थ्रू से कर सकते हैं। तो डॉस भी पहले था, अभी विंडोज के साथ भी आ रहा है। तो क्यों आ रहा है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे कैसे हम स्टार्ट करेंगे, तो तुम्हारा जो भी कंप्यूटर है, स्टार्ट को जाओ, रन कमांड में सिंपल cmd टाइप करो और एंटर मारो, वो कमांड प्रॉम्प्ट खोल जाएगा जो ब्लैक स्क्रीन मैंने दिखाया था। सो अभी हम डिस्कशन करेंगे यूनिक्स के बारे में। ओके, तो डॉस जैसा एक CLI है, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस है, इसी तरह हम यूनिक्स को भी बोल सकते हैं, इट इज ए CLI, बट यूनिक्स इज मोर पावरफुल देन द डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों इतना ये व्हाई इट इज पावरफुल ना, इट इज मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग। व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ना, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम एट ए टाइम मोर देन वन यूजर्स काम कर सकते हैं, और एक यूजर चाहे तो मोर देन वन टास्क काम कर सकता है, मतलब एट ए टाइम मोर देन वन काम वो कर पाएगा इसी से। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप कब हुआ ना, इट वाज डेवलप इन 1970 में डेवलप हुआ। कहाँ पे हुआ ना, यूएसए में। AT&T एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका एक लैबोरेटरी है, उसका नाम है बेल लैब, वहाँ बेल लैब में हुआ। तो इट इज ए मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इट प्रोवाइड्स ए ग्राफिकल यूजर, ये जैसे कि डॉस कोई भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड नहीं कर रहा था, लेकिन यूनिक्स प्रोवाइड कर रहा है, बट जो भी प्रोवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं हम एक्स विंडो, इसमें हम ज्यादा काम कर नहीं सकेंगे। इट इज यूज्ड इन हेवी कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। क्यों इसको हेवी कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट क्या है ना, जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस है बनाना है, तो रिसर्च एरिया में इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन क्यों यूज कर पाएंगे ना, इट इज मल्टीटास्किंग एंड मल्टी यूजर इंटरफेस के लिए। सो एक इसका बेहतरीन फीचर्स है, क्यों ना, इट इज डेवलप्ड यूजिंग सी लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द मोस्ट पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसी के थ्रू से वो डेवलप किया गया है, इसीलिए इसका फीचर ज्यादा है। तो ये था यूनिक्स के बारे में। अभी हम डिस्कशन करेंगे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो तुम लोग घर पे देखे होंगे। तो जहाँ पे भी आजकल इंडिया में जहाँ जो भी ऑफिस है, जहाँ पे भी कंप्यूटर यूज किया जाता है, जैसे मान लो कि बैंक में देखो, कोई गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, सब यूज करते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इतना पॉपुलर है, वर्ल्ड का जो कंप्यूटर यूजर से मैक्सिमम यूजर इसको यूज करते हैं। तो हम इसके बारे में जानेंगे, ये क्या है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कैसे काम करता है, और उसका जो टाइप्स आज कहाँ था, कहाँ से आके पहुंचा है। तो देखिए, विंडोज इज ए GUI इंटरफेस। GUI मींस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इट इज इजी टू यूज, क्योंकि ना सब पिक्चर्स हमको दिख जाता है, हमको कोई कमांड याद करना नहीं पड़ेगा, इधर हमको सब देख के जस्ट माउस में क्लिक कर दो, वो काम हो जाएगा। तो इसलिए ये इजी है। एंड इट इज मल्टीटास्किंग, मतलब एट ए टाइम मोर देन वन काम तुम कर पाओगे। इट रिक्वायर्ड लो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट एंड इट सपोर्ट्स द नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर। नेटवर्किंग पे जैसे कि हम इंटरनेट करेंगे, तो मैं एक ऑफिस बना रहा हूँ, वहाँ पे 10 कंप्यूटर रखा हूँ, 10 कंप्यूटर को कनेक्ट करूँगा, तो ये जो नेटवर्क बनाऊंगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर, जैसे वो फैसिलिटी यूनिक्स में था लेकिन डॉस में नहीं था। इट प्रोवाइड्स ए प्री डिफाइंड कमांड इन वेरियस एप्लीकेशन। प्री डिफाइंड मैंने पहले से कमांड बना के रखा गया है, हमको जस्ट क्लिक करना है, वो कमांड रेडी हो जाएगा और वो काम करना स्टार्ट करेगा। तो वेरियस एप्लीकेशन एंड एक्सेसरीज व्हिच कैन बी यूज्ड ऑन ए स्मॉल माउस क्लिक। हम यहाँ पे जो भी करेंगे माउस क्लिक के थ्रू इजी से कर पाएंगे। तो देखो, जब ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, उसका एक
मैंने बनाया है इधर, क्या है ना, 1985 में पहला विंडो आया। उसके बाद 1992 में विंडोज का नेक्स्ट वर्जन आया विथ न्यू फीचर्स 3.1। उसके बाद 1995 में आ गया। वो 95 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत पॉपुलर था। उसके बाद आया XP, इन बिटवीन और 2-3 वर्जन का ऑपरेटिंग सिस्टम भी आया वो था, NT एक नाम का आया था। उसके बाद इन 2006 विंडोज विस्टा आया। तो XP जो था वो वर्ल्ड का ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करते थे। उसके बाद आया विंडोज 7, इज मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड उसके बाद जो आया विंडोज 8, अभी हम जो यूज कर रहे हैं विंडोज 10, द लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी अगर तुमसे पूछेगा तो वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो अब मैं थोड़ा सब डिस्कशन कर दिया तुम डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा फीचर्स। अभी हम कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन मींस डॉस और विंडोज के अंदर क्या डिफरेंस है। तो देखो, 2 कॉलम में यहाँ पे बनाया गया है, एक लेफ्ट साइड डॉस का, राइट साइड हमारा विंडोज का। सो डॉस जैसे कि मैंने बताया सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, तो इसलिए ये लेस पावरफुल है। बट हम विंडोज ओएस के बारे में कहेंगे। विंडोज मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग GUI भी सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इट इज मोर पावरफुल एंड डिफिकल्ट टू यूज। डॉस जो है, कमांड को याद करोगे तो डॉस यूज कर पाओगे। मान लो अभी विंडोज में तुमको काम करना है, तुमको तो कोई कमांड याद करना नहीं है, डायरेक्ट बैठो और क्लिक करो तो काम हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा इजी है विंडोज में काम करना, डॉस में काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है। थर्ड जो है फॉर सिंगल यूजर, तो डॉस जो है मैंने ऑलरेडी बताया है, डॉस इज ए सिंगल यूजर इंटरफेस। इसी तरह ये मल्टी यूजर इंटरफेस, क्योंकि ना एट ए टाइम मोर देन 1 यूजर इसमें काम कर पाएंगे। सिंगल टास्किंग मींस एक टाइम में एक ही टास्क करेगा, यहाँ पे एक टाइम में मोर देन 1 टास्क कर पाएंगे। यूजर हैज टू रिमेंबर कमांड्स। इधर मैंने बोला कि कमांड याद करोगे तो कंप्यूटर में काम कर पाओगे, कमांड याद नहीं करोगे तो यू कैन नॉट वर्क। बट हियर अब हमको कुछ याद करना नहीं पड़ेगा। नो सपोर्ट ऑफ ग्राफिक्स, डॉस में कोई भी पिक्चर नहीं है, सब ब्लैक एंड स्क्रीन है, उसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं। बट विंडोज में क्या है, इट सपोर्ट्स ग्राफिक्स एंड नॉट सपोर्ट फॉर मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया जैसे कि तुम वीडियो प्ले करना चाहोगे, ऑडियो प्ले करना चाहोगे, ये सब पॉसिबल नहीं है किसमें, डॉस में। लेकिन सपोर्ट मल्टीमीडिया, इसमें वीडियो तुम प्ले कर पाओगे, ये सब काम कर पाओगे। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता था वो सस्ता था, चीप था, लेकिन इसमें जो हम यूज करेंगे सॉफ्टवेयर वो थोड़ा कॉस्टली है कंपेरेबल टू डॉस। डजंट सपोर्ट द विंडोज कमांड, इट सपोर्ट्स ऑल द डॉस कमांड। जैसे कि मैंने बताया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डॉस इंटीग्रेट होके आ रहा है, विंडोज सपोर्ट कर रहा है, लेकिन डॉस में विंडोज का कोई फीचर नहीं था। एंड डॉस जो है वो बूटिंग फास्टर हो जाता है, इसमें बूटिंग स्लो। बूटिंग मतलब क्या है, द प्रोसेस, जो वहां से हम कंप्यूटर ऑन किए, स्विच ऑन किए, तभी से कंप्यूटर का डेस्कटॉप पाने के लिए जो टाइम हमको लगता है दैट इज कॉल्ड बूटिंग। जो इन बिटवीन बहुत सारा प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं बूटिंग। ओके, देन हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे डॉस और यूनिक्स के अंदर। हम ऑलरेडी डिस्कशन हो गया हमारा डॉस और किसके अंदर, विंडोज का डिफरेंस। अभी डॉस और यूनिक्स के अंदर क्या डिफरेंस है ना, डॉस इज नॉन पोर्टेबल एंड इजीली पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स क्या है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में तुम डॉस इंस्टॉल किए हो, मतलब है तुम चाहोगे और एक कंप्यूटर तुम्हारा है उसमें डॉस को इंस्टॉल कराना है, इट इज वेरी डिफिकल्ट मतलब ये तो हो नहीं पाएगा कहीं ना। जो कंप्यूटर बना के आया है कंपनी से, उसी में डॉस है, हम चाहेंगे तो दूसरा में डॉस डाल नहीं सकते, कंपनी वाला ही डालेंगे। लेकिन यूनिक्स क्या है ना, हम एक कंप्यूटर में यूनिक्स है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम दूसरे कंप्यूटर में ऐड भी कर पाएंगे। सिमिलरली सेकंड पॉइंट क्या है, सिंगल यूजर सिंगल यूजर मतलब हमको ऑलरेडी मैं बताया हूँ, सिंगल यूजर
मल्टी यूजर, देन सिंगल टास्किंग, उसमें मल्टीटास्किंग। इधर नो यूजर आईडी एंड पासवर्ड, तो डॉस में यूजर आईडी पासवर्ड हम नहीं दे रहे हैं, तो सिक्योरिटी इसमें कम है। लेकिन यूनिक्स में हमको जैसे भी हो यूजर आईडी पासवर्ड देके उसको सेव करना है। विदाउट यूजर आईडी एंड पासवर्ड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम यूज ही कर नहीं पाएंगे। तो सिमिलरली डज नॉट प्रोवाइड मच सिक्योरिटी, तो अभी मैं बताया सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि ना उसका यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है। बट यूनिक्स में यूजर आईडी पासवर्ड है तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। नो सपोर्ट ऑफ ग्राफिक्स, ऑलरेडी मैंने बताया। सिमिलरली विंडो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का भी ग्राफिक्स का इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो जो सपोर्ट करता है एक्स विंडो उसको बोलते हैं, इसीलिए वो हम बोलेंगे वो सपोर्ट ऑफ फॉर ग्राफिक्स। नो सपोर्ट फॉर मल्टीमीडिया, बट यूनिक्स सपोर्ट करता है मल्टीमीडिया को। लिमिटेड नेटवर्क सपोर्ट, बट यूनिक्स का यूज करके हमको ज़्यादा जितना बड़ा भी नेटवर्क हम बना सकते हैं। तो ये था यूनिक्स एंड डॉस का डिफरेंस। ओके, ये डिटेल्स हम डिस्कशन कर दिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग सब समझ पा रहे होंगे। अभी हम नेक्स्ट सेक्शन को मूव करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि इसको सीख के हम तुम लोग तुम्हारा कंप्यूटर साइंस में कैरियर ही आगे ले सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, तो व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो थोड़ा मैं इजीली उनको समझाना चाहता हूँ। लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज सर, जस्ट टेल मी। What is language? The language is the medium of, it is the medium of communication. हम दो आदमी है, इधर एक आदमी है, इसी को हम देखेंगे। तो यहाँ पे लेवल लैंग्वेज इज लो मेमोरी, देन इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज टफ टू अंडरस्टैंड, लो लेवल इज, एंड इट इज सिंपल टू डिबग। डिबग मींस उसको एरर रेक्टिफाई करना, रन करना इजी है, उसको एरर फाइंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट है। और इसी प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंटेन करना बहुत आसान है, लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट है। इट नीड्स कंपाइलर और इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, ट्रांसलेट करना है। जैसे कि मैं सब मान लो कि हिंदी समझ रहा हूँ, तो मुझे कोई उर्दू में आके बोलेगा तो मुझे क्या करना होगा, एक आदमी आके ट्रांसलेट कराएगा। इसी तरह कंप्यूटर समझता है 0 एंड 1, तो इसी को हमको क्या करना है, हम जो हायर लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है हायर लेवल लैंग्वेज, इंग्लिश में लिखेंगे तो उसको तो ट्रांसलेट कराना है। तो ट्रांसलेट कराने के लिए दो ट्रांसलेटर हम यूज करते हैं, एक को बोलते हैं इंटरप्रेटर, अनदर वन को बोलते हैं कंपाइलर। सो देखो इंटरप्रेटर और कंपाइलर के अंदर क्या डिफरेंस है, इसको देखेंगे। इंटरप्रेटर क्या है, इट कन्वर्ट्स हायर लेवल प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट इनटू मशीन कोड। मशीन कोड में से जैसे कि मैंने बताया मशीन लेवल लैंग्वेज 0 एंड 1 को कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या है, इट आल्सो, बट इंटरप्रेटर क्या होता है, लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, मतलब ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर क्या करेगा, एट ए टाइम होल प्रोग्राम को पढ़ लेगा और होल प्रोग्राम को वो ट्रांसलेट कर देगा इसमें 0 एंड 1 में। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। The interpreter translates the instruction line by line. Compiler translates the whole program at a time. Interpreter का साइज जो है स्मॉल है, साइज मतलब मेमोरी में वो कम बाइट लेगा। It is larger in size. It is easy to write. It is difficult to write. It takes less space in the memory. Since इसका साइज कम है, वो मेमोरी कम लेगा। It takes large space in the memory. It takes longer time to execute. It takes less time to execute. इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द, सॉरी उल्टा हो गया, ये जो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है और ये क्या एट ए टाइम ट्रांसलेट करता है। वी कैन गिव द EXE मतलब क्या है, ट्रांसलेट करने के बाद जो 0-1 फॉर्मेट में एक फाइल जनरेट होता है उसको बोलते हैं EXE एग्जीक्यूटेबल फाइल। श्योर, फाइनली हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट था ये सब
हम कंक्लूजन करेंगे। तो क्या क्या हम डिस्कशन किए ना, फीचर्स ऑफ डॉस विंडोज हम डिस्कशन किए, फीचर्स ऑफ एमएस डॉस डिस्कशन किए, कंपैरिजन किए डॉस विंडोज यूनिक्स के अंदर, देन टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैंने बताया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है, डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज, देन मैंने बताया इंटरप्रेटर क्या है, कंपाइलर क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। So that's all for this class lecture. I hope you must enjoy the class. Thank you.